नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करते हैं अपना पुराना टॉपिक इन्वायरमेंट एंड पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस माशा कुमरी यूनिवर्सिटी माइनर। हमारा फर्स्ट पार्ट इन्वायरमेंट कंप्लीट हो गया था। इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ बैलेंस डाइट। अ डाइट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एसेंशियल food components such as protein, carbohydrate, fat, vitamin and minerals in a correct proportion is called balanced diet. In a balanced diet there are macronutrient and micronutrient. Macronutrient are required in a large amount such as carbohydrate, protein and fat. Micronutrients are required in small quantity, and the main function of these nutrients to enable the various good chemical reaction occurring in the body. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि है मेडिटेरेनियन डाइट। देखिए, द कंसेप्ट ऑफ मेडिटेरेनियन डाइट कम फ्रॉम द मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी के आसपास जितने भी कंट्रीज़ है वहाँ पर आइलैंड पर जो भी लोग रहते हैं, जब रिसर्चर उनके पास गए उन्होंने बताया कि हम ये फूड कंज्यूम करते हैं, हमारी डाइट ये है, और पाया गया वहाँ के लोग ज़्यादा दिनों तक जीवित रहते हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं। तो वहीं से ये कंसेप्ट आया मेडिटेरेनियन डाइट का। The Mediterranean diet is based on the traditional food of countries bounding the Mediterranean Sea, including France, Spain, Germany, Italy. Some researcher has suggested that people living in these regions tend to be healthier and have a lower risk of many chronic disease. Mediterranean diet suggested यानी कि some consume more like vegetable, whole grains, legumes, nuts and seeds. Consume less processed food, sugar added food, refined grains, less alcohol consumption. Benefit of Mediterranean diet helps in weight loss, help to prevent the heart attacks, strokes, type 2 diabetes, improve the digestive system. चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइम ऑफ ईटिंग। It is important to remember that our body digested differently at various time of the day. The best time to eat breakfast. Breakfast is the first meal of a day. Some people feel strongly about eating breakfast within a first few hours after sunrise. And a lunchtime intake bulk calorie in a lunch between 12 to 1 p.m. Dinner time, take a less calories meal just before bedtime or throughout the mid May. Support the better health outcome यानी कि 8 to 7 pm. अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर इंटरमीडिएट फास्टिंग। Intermittent fasting is an pattern that cycles between period fasting and eating. यानी कि इंटरमीडिएट फास्टिंग हमारा वो फास्टिंग है जब हम टाइम पर फास्ट रखते हैं। जैसे 6 से 10 बजे तक हमने फास्ट रख लिया, 5 से 6 बजे तक फास्ट रख लिया। जनरली 6 आवर का हमारा गैप होता है। कॉमन इंटरमीडिएट फास्टिंग मेथड इन्वॉल्विंग डेली 16 hours of fasting for 24 hours twice per week. Fasting has been a practice throughout human evolution. Fasting is also done in a religions including Hinduism, Islam, Christianity, Jainism and Buddhism. अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि है कैलोरी। इन न्यूट्रिशन, कैलोरी रेफर टू द एनर्जी पीपल गेट फ्रॉम फूड एंड ड्रिंक दे कंज्यूम एंड दे एनर्जी यूज फिजिकल एक्टिविटी। A calorie is a unit of energy. Health consequences of empty calorie diet in young adult. Food and drink that contain no significant nutrient but high in a calorie are said to be empty calories. Empty calorie those that come from added sugar and solid fat as well as some processed oil. These include carbohydrate-based desserts such as cookies, cakes, biscuit, donuts, sugar drinks including soda, energy drinks, and fruit juices, fast food including burger, chow-mein, momos, alcohol consumption. Health consequences: lack of nutrition value in a body, weight gain, diabetes, tooth decay, heart disease, and high BP. अब चलते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट पर जो कि है हमारा लाइफस्टाइल एंड इंडियन मेथड्स टू इम्प्रूव हेल्थ। देखिए, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ दोशाज: वात दोषा, पित्त दोषा एंड कफ दोषा।
अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट, यानी कि वायु, अग्नि, जल, आकाश और भूमि। और इन पांचों के कंट्रीब्यूशन या प्रपोर्शन से ही मिलकर हमारे 3 दोष बनते हैं। देखिए, यदि अर्थ और वाटर एलिमेंट इंटरेक्ट करे तो हमारा कफ दोष होता है। अग्नि और वाटर जब इंटरेक्ट करता है तो पित्त दोष आता है। और एयर स्पेस जब एलिमेंट इंटरेक्ट करते हैं तो वात दोष आता है। देखिए, डेली रूटीन एज पर आयुर्वेदा, द करेक्ट टाइम टू वेक अप, द लास्ट फेज ऑफ डार्कनेस, ब्रह्म मुहूर्त यानी कि 4 बजे से 5:30 बजे तक। ब्रेकफास्ट टाइम आफ्टर 1 आवर ऑफ सनराइज, टेक लाइट फूड विच डाइजेस्ट इजीली, यानी कि हमको हल्का खाना खाना चाहिए सुबह के समय जो कि इजीली डाइजेस्ट हो सके। लंच टाइम हमारा 1 बजे है। टेक गुड अमाउंट ऑफ फूड ड्यूरिंग लंच टाइम के दौरान हमें अच्छा खाना लेना चाहिए क्योंकि इस समय हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ज़्यादा एक्टिव होता है। डिनर टाइम आफ्टर 1 to 2 आवर ऑफ सनसेट, 8 to 8:30 PM, यानी कि सनसेट से 1 या 2 घंटे के बाद आपको डिनर कर लेना चाहिए। और डिनर करने के बाद 2 आवर का गैप होना चाहिए बेड पर जाने के लिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्काडियन रिदम फॉर बेटर लाइफ, यानी कि बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में पढ़ते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक हमारी सजेस्ट करता है कि हमको 12 बजे से लेकर 2 बजे तक डीप स्लीप में रहना चाहिए। 2 AM से 4 AM तक हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो लोवेस्ट रहता है। 4:30 बजे से 6:45 तक शार्पेस्ट राइज ब्लड प्रेशर, यानी कि ब्लड प्रेशर के अंदर एक राइज देखने को मिलता है हमें 4:30 AM से 6:45 AM तक। 6:40 से लेकर 7:30 का जो टाइम होता है उस समय हमारा मेलाटोनिन हार्मोन जो कि स्लीप के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो स्लो डाउन हो जाता है। और 7:30 AM to 8:30 AM हमारा बाउल मूवमेंट हमको कर लेना चाहिए, यानी कि हमको वॉशरूम चले जाना चाहिए 7:30 AM से 8:30 AM तक। 8:30 बजे से लेकर 9 बजे तक हमको अपना जो भी डेली रूटीन का काम है वो फिनिश कर लेना चाहिए। इस समय हमारा टेस्टोस्टेरोन सेक्रीशन काफ़ी हाई रहता है और इस समय हमको हाईएस्ट एनर्जी प्रोवाइड होती है हमारी बॉडी के द्वारा। 9 AM से लेकर 10 AM तक हमारा हाईएस्ट अलर्टनेस रहता है, यानी कि अपने जो भी इम्पोर्टेंट काम्स हैं वो 9 बजे से 10 बजे के बीच में ख़त्म कर लेने चाहिए। 12 बजे से लेकर 2:30 बजे तक हमारा बेस्ट कोऑर्डिनेशन टाइम होता है, यानी कि यदि हमको कुछ ऐसा वर्क करना है कि जो कि कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि हर वर्क के अंदर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कुछ ऐसा स्पेसिफिक वर्क है जिसके अंदर ज़्यादातर कोऑर्डिनेशन का ही काम है, वो हमको फिनिश कर लेना चाहिए 12:30 बजे से 2:30 बजे तक। 3:30 बजे से 2:30 बजे से लेकर हमारा जो 3:30 बजे का टाइम है वो फास्टेस्ट रिएक्शन टाइम है। 3:30 बजे से लेकर हमारा 5 बजे का जो टाइम है वो ग्रेटेस्ट कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी मसल स्ट्रेंथ का टाइम है, यानी कि 3:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक हमको अपनी जो योगा है या एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर लेनी चाहिए। 6:30 बजे से लेकर 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक हमारा हाईएस्ट ब्लड प्रेशर रहता है, यानी कि इस समय हमको कम काम करना चाहिए क्योंकि सनसेट का टाइम हो चुका है। 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो हाईली रहता है, यानी कि हाईएस्ट ब्लड टेम्परेचर रहता है। 9 बजे से लेकर 10 बजे तक हमारा जो मेलाटोनिन सेक्रीशन है वो स्टार्ट हो जाता है, यानी कि हमारा जो स्लीपिंग हार्मोन है वो हमको सोने के लिए कहता है और हमको डीप स्लीप में चले जाना चाहिए। 9 PM से लेकर 10 PM के अंदर हमारा बाउल मूवमेंट सप्रेस्ड हो जाता है, यानी कि हमको वॉशरूम नहीं जाना चाहिए 10 PM से 12 PM तक। तो ये था हमारा डिटेल डिस्कशन पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस का। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।